Hello everyone. Today I am going to start economy of the India. So we are going to start economy of India. Okay. So in this portion today also we will going to solve some MCQs and which will based on the past questions in various examinations. Okay. So economy portion is very factual, actually lots of datas are there, so questions may be some factual and which is not relevant for current studies, but we will discuss some concept also, so that concept will very much important for in our future examination. And now very lots of exams was in past, and these questions are repeated multiple times. So first question is to prevent the recurrence of this scam in India capital market, the government of India has assigned regulatory power to. So see the capital market. Okay, if there is a capital market and if there is a schemes in the capital market, so the which body where the government of India assigned which body where the government of India assigned about the regulatory powers. So this is about the regulatory power of the government of India. So this body is the SEBI. Body name is SEBI. Okay, Security and Exchange Board of India, and which is initially a constitution in the 1988. It was constituted in the 1988, but government of India has assigned the regulatory power to the SEBI in 1992. So in 1992 it got the statutory power. Statutory powers. Okay, and for the regulating India's capital market, it is very important, SEBI, and its headquarter is in the Mumbai. Okay, headquarter is in the Mumbai. Now next one is which of the following 5-year plan recognizing human development as the core all the efforts. So that is 8th 5-year plan. So we should be in our mind, this is the 8th 5-year plan. 8th 5-year plan, and this 8th 5-year plan okay, this 8th 5-year plan, government of India has taken the step for the human development, okay. So this 8th 5-year plan is very important for the human development, and it was in 1992 to 1997. Okay, this was in this area based on the John Miller mode. Okay, so it was based on the John Miller model, and it was based on the Miller model. Okay, and this plan is management the transactional from centrally planned economy to create the employment, to encourage the growth, and to strengthen the infrastructure, and to emphasize the role of private sector also. So these were some basic characteristics of this plan. Next is which of the following objective is the Commission for Agriculture Cost and Price? Commission of Agriculture Cost and Price, CACP. So what are the work? First, to establish the agriculture price. So agri prices, it should be stabilized. Okay, it should be stabilized. First one is this. Second one is to ensure the meaningful real income level to the farmers. So we need a real income to farmer. Okay, real income to the farmers. Third is to protect the interest of the consumer, and to protect the consumers, and to ensure the maximum price for the farmer. That is actually not the principle of the Commission for Agriculture Cost and Prices. Okay, that is actually not for that. Now next is as part of the liberalization program, and with the view of the attract the foreign exchanges, the government and RBI has devised two schemes. So the name is FCRNA and FCNA scheme. Okay, so under this scheme RBI bear exchange rate fluctuation. So
So yes, in this scheme, the name is FCNR scheme, foreign exchange scheme. At the foreign exchange, there is a FCNR scheme. So FCNR actually, FCNR A scheme and FCNR B scheme. So in this two schemes, under this RBI bear the exchange rate fluctuation. So RBI will decide the fluctuations and it will reduce the fluctuations. Okay. Second is under this scheme B, other banks are to meet out the difference in exchange rate fluctuation. So name is foreign currency non-resident deposit. Scheme name is foreign currency non-residents deposits. Okay, and in this both the scheme stand withdrawal now. सो क्या दोनों ही स्कीम को विड्रॉल कर दिया गया है. सो एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों को विड्रॉल नहीं किया गया था. और ओनली स्कीम ए हैज़ बीन विड्रॉल, केवल एक को ही विड्रॉल किया गया था. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इररिलेवेंट है एज़ पर द करंट, लेकिन हम और डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्लान. तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है, ये मैंने कल भी बताया था इकोनॉमी में. विच आर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट इज़ द डिफेंस, सेकंड इज़ द सब्सिडीज़, एंड थर्ड इज़ द ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्लान पीरियड. ओके, इट इज़ लिंक टू द प्लान पीरियड. तो ऑल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो किससे रिलेटेड हैं, प्लान पीरियड से रिलेटेड हैं. एंड फोर्थ है इंटरेस्ट पेमेंट. फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट एंड पेमेंट. तो ये सारे के ही सारे क्या हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. दीज ऑल आर रिलेटेड टू द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. ठीक है. तो इसमें है कि इंक्रीज़ इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अगर हम FDI को बढ़ा दें, FII को बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें. सो इंक्रीज़ इन द FII एंड FDI या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा. तो क्या होगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा. ठीक है. इसको बढ़ाने से क्या होगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा. यस, बिल्कुल. फिर है लो इम्पोर्ट ग्रोथ. अगर इम्पोर्ट ग्रोथ कम होती है तो रिसेशन आ जाएगा. अगर लो इम्पोर्ट है, अगर हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन द रिसेशन पीरियड. एंड यूरो इशू जो है, यूरो इशू शेयर्ड हेल्ड इन द इंडियन कंपनीज इन यूरोपियन कंट्री. सो दैट इज़ एक्चुअली क्राइसिस इन यूरो जोन. यूरो इशू क्या है, यूरो इशू है that is the crisis in the eurozone. This is not related to the Indian currency. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दिस इज़ अबाउट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. तो हमेशा ध्यान रखना है, इट इज़ कॉल्ड द हॉट मनी. ये कभी भी जा सकती है, इट इज़ नॉट स्टेबल मनी. सो दिस इज़ नॉन एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड दैट इज़ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओके. सो ये हो गया हमारे पास. जब भी लो इम्पोर्ट होता है तो हमारी जो इंडिकेट क्या करता है कि स्लो डाउन है या फिर रिसेशन है इकोनॉमी में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एनुअल रेट एम एट द 8 5-year प्लान. हमने 8 5-year प्लान में जो एनुअल रेट को कितना हमने अज्यूम किया था, तो हमने अज्यूम किया था 5.6. और हमने ये भी कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें लाना है. ठीक है. तो 8 5-year प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें 5.6 को हमने स्पेकुलेट किया था कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक. नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉरपोरेशन टैक्स. कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है. सो कॉरपोरेशन टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट. इट इज़ शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट.
सो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? अंडर आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is under the union list and shared as per the provision of article 270, and toll tax, land revenue and tax on vehicle are some of the tax that are levied the appropriated by the state. तो टोल होता है, सेल्स होते हैं, लैंड रेवेन्यू होता है और टैक्स ऑन द व्हीकल्स जो होते हैं दैट ये सब तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। एंड सेंटर जो होता है वो कलेक्ट करता है, अप्रोप्रिएट करता है बाय द स्टेट, जो कि होती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो होता है इसमें क्या होता है कि टैक्स लेविड बाय द सेंटर, सेंटर ही लेविड करता है, कलेक्ट भी करता है, लेकिन अप्रोप्रिएट किसको कर देता है? स्टेट को कर देता है, दैट इज़ द स्टैम्प ड्यूटी। एंड चेक प्रॉमिसरी नोट्स जो होते हैं ये भी आते हैं इसके अंतर्गत। एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल टैक्स दैट इज़ लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में किस किस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है? जैसे कि मेडिसिनल या टॉयलेट के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर अगर हम कोई टैक्स लगाते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ इन द यूनियन लिस्ट। तो आर्टिकल हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 268 एंड आर्टिकल 268A जो है, ठीक है, एंड 269 एंड 2671, ये 3 आर्टिकल्स हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। द शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू इज़ प्रेस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितनी शेयरिंग करनी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और रिकमेंडेशन किसकी इंपॉर्टेंट होती है? दैट इज़ द फाइनेंस कमीशन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितना परसेंट शेयर जो है कौन से स्टेट को देना है, विच स्टेट शुड बी गिवन हाउ मच परसेंट ऑफ द शेयर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक जो है ना इसकी 5 टाइप की इंस्टीट्यूशन है। पहला है इंडियन बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन, इंडियन बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और चौथा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। है क्या? मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। तो देखिए एक तो है IBRD, दूसरा है IDA, IFC, फिर है मीगा, अगला है इसका मीगा और अगला है ICSID। ICSID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द डिस्प्यूट। मीगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज़ IBRD। तो ये जो है 5 संस्थाएं हैं जो कि वर्क अंडर द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब भी एग्रीकल्चर का जो इनकम टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर, एंड दैट इज़ गवर्नड बाय स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, so agri income tax and the agriculture income tax on the state government is constituted under the section 2A1, and that is 1961 define the agriculture income, that is define the agriculture income. Next is which of the following is not the instrument of selective credit control in India? सो देखिए जब भी इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल की बात आएगी, सो क्रेडिट कंट्रोल, ओके, क्रेडिट कंट्रोल कैसे कैसे होता है? सो फर्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। तो कंज्यूमर कितना अकाउंट कैरी कर रहा है, कंज्यूमर क्रेडिट पे आप क्या करोगे? मतलब थोड़ा सा नियंत्रण करोगे, ठीक है। दैट इज़ रिलेटेड टू द सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द RBI। एक होता है राशनिंग करना, ठीक है, राशनिंग कर देती है RBI, क्या करती है? फंड की राशनिंग कर देती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। या तो आप कंज्यूमर क्रेडिट को क्या करोगे? रेगुलेट कर दोगे, ठीक है, या फिर आप फंड की राशनिंग कर दोगे, या फिर आप मार्जिन, कितना मार्जिन है, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को क्या करोगे? मेज़र करोगे। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव मीन्स क्रेडिट कंट्रोल। बट जो फाइनली वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो है, तो कैश रिजर्व रेशो जो होता है CRR इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव।
Okay, so it is instrument of the monetary policy and like bank rate, CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, all these kind of tools which are as a qualitative tools, not the quantitative tool. And in quantitative tool only three tools are there. First is the regulation of the consumer credit, second one is the rationing of the credit, and third one is the margin requirement. And variable cost reserve ratio, that is part of the qualitative. And here the question was asked not instrument of the credit control in India. तो क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट जो नहीं है, देखिए क्रेडिट कंट्रोल जो है ये किस में आता है, दिस इज अंडर द क्वालिटेटिव नॉट द क्वांटिटेटिव. ओके, सो ओके, गॉट इट. नेक्स्ट वन इज which of the following is true regarding the Jawahar Rozgar Yojana? So next one is Jawahar Rozgar Yojana, which is under the Jawahar Rozgar Yojana. So under the scheme 30% of the employment generated is reserved for the women. तो इट इज़ नॉट 30%, एक्चुअली इट वॉज 33% जो इनकम है दैट इज़ अंडर द वुमेन. ओके, तो जवाहर रोजगार योजना जो थी इट वॉज इन 1999. तो 1999 में ये योजना आई थी और इसके अंतर्गत जो है 33% वुमेन्स को रखा गया था. तो ये रॉन्ग हो गया. नाउ नर्सिंगम कमेटी आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंगम कमेटी. नर्सिंगम कमेटी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हैज़ सजेस्टेड रिडक्शन इन. तो जो नर्सिंगम कमेटी आई थी, नर्सिंगम कमेटी, ठीक है. तो इस कमेटी ने क्या बोला था? सो दिस कमेटी वॉज रिकमेंडेड अबाउट टू रिड्यूस द SLR, CRR एंड द प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग. सो दिस ऑल थ्री शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो इसने कहा था कि SLR शुड बी रिड्यूस्ड टू 25%. तो इसने कहा था SLR को 25% रिड्यूस करो, CRR को 10% तक रिड्यूस कर लो आप. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए मार्जिनल फार्मर्स वगैरह हैं उनके लिए भी कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा टैक्सेस में. तो दैट इज़ 10% रिडक्शन होना चाहिए. और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है दैट शुड बी रिड्यूस्ड एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस आना चाहिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर का. ठीक है, सो दैट इज़ फ्रॉम द नर्सिंगम कमेटी एंड दिस कमेटी वॉज केम इनटू 1991 एंड टुक इनटू एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. और उसमें सारे के सारे एस्पेक्ट थे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर इंडियन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द ईयर हैज़ बीन दैट. सो यहाँ पर है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ बीन डायरेक्टेड टूवर्ड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. सो इसने पूछा है कि विच वन ऑफ द रीज़न फॉर इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम. तो इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, ठीक है, इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस है वो जो मोर और लेस हमेशा सेम रहता है. इसका कारण क्या है? इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ बीन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव. तो जितना भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एंड दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द कैपिटल इंटेंसिव. ये क्या है? एक कैपिटल इंटेंसिव है. इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कैपिटल इंटेंसिव. दैट्स वाई द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेन्स मोर और लेस द सेम. इसीलिए क्या है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, मोर और लेस यहाँ पे सेम रहता है हमेशा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेन रीज़न फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग. हमारे यहाँ पे लो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट इज़ लो इन स्पाइट ऑफ हाई सेविंग, बट सेविंग अभी भी हमारी हाई है. इन स्पाइट ऑफ हाई सेविंग वी हैव लो ग्रोथ रेट. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हाई कैपिटल आउटपुट रेशो. क्योंकि हमारे यहाँ का जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, द कैपिटल आउटपुट रेशो एंड दैट इज़ हाई, एक्चुअली दैट इज़ हाई. ओके, सो कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ हाई. That's why the capital output ratio is the number of the unit of capital required to produce a unit of the output over a given period of time. So low growth rate in India is in spite of high rate of the saving and capital formation is high. तो यहाँ पर क्या है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है हमारा. ठीक है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है हमारा. इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट तो लो है और इन स्पाइट ऑफ हाई सेविंग होने के बाद भी हमारी ग्रोथ रेट कम है बिकॉज अवर कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ द वेरी हाई बिकॉज ऑफ द
capital output ratio is very high. Next one is the largest source of the financing the public sector outlay of the 8th 5-year plan comes from. तो देखिए 8th 5-year plan बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो 8th 5-year plan ओके इन दिस लार्जेस्ट शेयर किसका है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ओके. सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर आउटले 8th 5-year plan इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग ओके. सो इट इज़ पॉलिसी ऑफ द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, उन दोनों के बीच के गैप को अगर हमें दूर करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है उस कंडीशन में, कैपिटल फाइनेंसिंग करती है ओके. इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट डू द डेफिसिट फाइनेंसिंग, सॉरी दैट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग ओके. सो दिस इज द this is the 8th 5-year plan which we provided the benefits of the largest source of the financing from the deficit financing okay. So this was the matter of concern. Now next one is the new Exim policy. Next one is about the new Exim policy. So new Exim policy, this new Exim policy announced in the 1992. It was announced in the 1992. So the period was 5 years. So new Exim policy was allowed for the 1992 and it was for the 5 year. It is the export and import policy and that is also known as the Exim policy okay. So and that is about the period of the 5 year. That is about the period of the 5 year. Next is the Industrial Finance Corporation of the India, and ठीक है, सबसे पहले ये बना था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया एंड दैट वाज इन द 1948. और सेकंड नंबर पे था इन ICICI एंड दैट इज़ इन द 1955. एंड उसके बाद में बना था UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज इन 1964. एंड उसके बाद बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज ऑल्सो 1964. बट पहले UTI आ गया था, उसके बाद IDBI आया था. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. तो हमारे पास एक तो है स्टेबलाइजेशन, ठीक है, देयर इज ए स्टेबलाइजेशन प्लस सेकेंड थिंग इज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. So stabilization with the structural adjustment as a two component of the new economic policy, okay. So what India adopted in the new economic policy, so that is structural adjustment is gradual multi-step process while stabilization is the adaptation process. तो stabilization से तो क्या हो जाएगा, adaptation हो जाएगा, and structural reform जो होते हैं that is the multi-step process होता है, okay. So that's all right. Next is, so in the new economic policy in 1991 initiated objective of the stabilization and structural adjustment. So stabilization तो short term measure होता है, ठीक है. Stabilization is a short term measure for the problem that is developed in the balance of the payment. अगर कोई balance of payment की problem है तो उसको हम दूर करेंगे. अदरवाइज लॉन्ग टर्म मेजर क्या होगा, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म मेजर. नाउ नेक्स्ट वन इज an important policy instrument of economical liberalization is reduction in import duties. तो जब भी LPG रिफॉर्म्स आएंगे तो इस कंडीशन में वी आर गोइंग टू रिड्यूस द import duties. We are going to reduce the import duties on the capital goods, and reduction in the import duty would help to the local entrepreneurs to improve the technology. जैसे ही import duty को reduce करेंगे then it will improve the technology. Okay, so reduction in the import duty of the good, and that will improve the technology, and reduce in the import duties on the capital goods will be lesser cost, okay, and help in improving the production capacity of the economy and achieving the economic scale also.
सो जैसे ही हम LPG रिफॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड दैट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म, and reduction in the import duty would be help in the local entrepreneurs to improve the technology to face the global market. Okay, so duties कम करेंगे तो that will be improve our technological improvements. Okay, now next one is which one of the important goal of the economic liberalization? So what is the important goal of the liberalization? What is the important goal of liberalization? For the full convertibility, so this is, it will attract more foreign capital inflow in the market. If we are going to convert our economy in the full convertibility, that means we are going to attract more capital. So we are going to attract more capital. Okay, so we are going to attract more capital in the market. Okay, so it will for the import of the inflow of the capital, it will inflow of the capital. Okay, so full account convertibility in the rupees will improve the inflow of the currency in our market. So convertibility जो है current account convertibility तो हमने कर रखी है, that is fully freely we can convert the current account convertibility. So क्या है मतलब what Indian living abroad send to their friends and the relative in India. तो जो भी मनी जो अब्रोड में रहते हैं वो लोग अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को सेंड करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज दो ही चीज़ें आती हैं. So in the current account convertibility there is only two kind of the things. One is the goods and second one is the services. But in the capital account convertibility, Tarapur committee is recommended that for both the current and capital account convertibility, Tarapur committee has said that there should be a current account convertibility as well as the capital account convertibility. But presently India there is a full current account convertibility but no full capital account convertibility. So full convertibility अगर हम कर लेंगे तो it will attract the more foreign investment. But होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट बड़ा ही नॉन स्टेबल टाइप का होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है कभी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द नाफ्टा एंड द एशियन एंड लाइक द एक्सपेक्टेड टू. ठीक है, तो इमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं सच इज़ द नाफ्टा. दीज आर द trading blocks such as the NAFTA and the ASEAN and the like the expected to promote the free trade by the WTO. तो नाफ्टा और आसियान क्या करेंगे? they will promote the free trade in the international market. Okay, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ अबाउट, जैसे 1994 में नाफ्टा बनाया गया था. नाफ्टा में कौन कौन है? कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है. फिर आसियान को कब बनाया गया था? 1967 में. नाफ्टा को बनाया गया था 1994 में. और नाफ्टा में है हमारे जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट है अमेरिकन कंट्रीज़ हैं. वैसे ही आसियान का जो है दैट इज़ विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन. और बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. So these all countries are representing in the ASEAN and the year is 1967. Next one is which of the following is the World Trade Organization? About the World Trade Organization, so first is promotion of the free trade. Free trade resources flow across the country. Free trade and the flow in the country. Free trade. Second is protection of the IPR. IPR को क्या देना है? प्रोटेक्शन. थर्ड इज़ द मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम को दूर करना. और फोर्थ है प्रमोशन ट्रेड इन द फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक. तो क्या करेगा? प्रमोट करेगा किसको? इट विल प्रमोट द ट्रेड. सो ऑल ऑफ दिस वर्क आर डन बाय द WTO. सो WTO एज ए ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेंबर्स आर GATT. सो GATT के जो मेंबर थे दे साइन एन एग्रीमेंट ऑन द उरुग्वे राउंड. इट वॉज द Uruguay round, and this Uruguay round they established the WTO officially in the 1995.
They established that in the 1995. Okay, now next one is Hawala transaction relate to. So what is about the Hawala transactions? Okay, what is about the Hawala transactions? So see, Hawala transactions क्या होता है? And see, so Hawala transaction is a rupee receiving the rupees against the overseas currencies and vice versa without going through the official channel. So if we are going without going official channel, without going to the official channel, if we are without going the official channel, we are just receiving the rupees against the overseas currency, so that is known as the Hawala transactions. Okay, that is known as the Hawala transaction. Next is the rural income generally lower than the urban income. अब जब भी इनकम की बात आती है तो होता क्या है, इन द इनकम रूरल इनकम इज़ जनरली, सो रूरल इनकम इज़ जनरली लेस देन, दैट इज़ द लेस देन अर्बन इनकम, दैट इज़ लेस देन द अर्बन इनकम. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है इसका? पहला रीज़न है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट द साइंटिफिक एग्रीकल्चर. तो रूरल एरिया में क्या होता है, फार्मर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली इलिटरेट एंड दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द रूल्स, रेगुलेशंस एंड द लॉ एंड ऑर्डर. सेकेंड इज़ द प्राइस ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. तो प्राइस जो होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑलवेज लोअर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में वो वैल्यू एडिशन हो जाता है एंड दे बिकम द मोर कॉस्टलियर. थर्ड इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो. अब इन्वेस्टमेंट जो होता है ना एग्रीकल्चर में, दैट इज़ लोअर देन द मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो ऑल ऑफ द थ्री आर द रीज़न, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रूरल इनकम इज़ लेसर देन द अर्बन इनकम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू इंडिया नेशनल इनकम हैज़ गोन अप सेवरल फोल्ड इन 1947 and there has been no market improvement in per capita income. So national income is growing but no improvement in the per capita income. So sizable proportion of the population of India is still living below the poverty line. Okay, ऐसा क्यों होता है? per capita income is not increasing but national income is increasing because the sizable population of the India is still living in the below poverty line. They are living in the below poverty line. So this is the reason. Next one is they are fantastically diverse. They speak 100 of the languages, dialects. They comprises a score of ethnic group. तो ये किसकी बात की जा रही है? दैट इज़ एपिक ग्रुप. एपिक ग्रुप जो है, सो एपिक, अबाउट द एपिक. सो एपिक क्या करता है? दे आर स्पीकिंग 100 ऑफ द लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स एंड कंप्राइजेज द स्कोर ऑफ एथनिक ग्रुप इंक्लूडिंग हाई इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी एंड अप टू डेट इकोनॉमी. सो दिस एपिक इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एंड cooperation. Okay, and that is in 1989. Okay, and APEC was in the 21 Asia Pacific Rim countries हैं जिससे मिलके बना था. APEC consists of the members from the East Asia, South Asia and many Oceanic and North American and South American countries. It has many languages and many groups, ethnic groups, and APEC has around 40% of the world की क्या है यहाँ पे population. 40% of the population is living here and 60% of the GDP it consists करता है. GDP का 60% and 40% of the languages population is living in the APEC group. APEC is the Asia Pacific Economic Cooperation and it is emerging economy like China, Japan, Canada, Australia, Indonesia, Thailand, Mexico. तो ये सभी एपिक के क्या है? एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के पार्ट हैं. इसमें अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, एशियन कंट्रीज़ भी हैं और साउथ ईस्ट एशिया के भी लोग रहते हैं. ठीक है. Now next one is which of the following sets of the commodity are export to India by arid and semi-arid Middle East. तो जो arid region है, arid and the semi-arid region of the India से Middle East की तरफ क्या जाता है? Towards the Middle
ईस्ट, मिडिल ईस्ट की तरफ क्या जाता है? सो दैट इज़ द फ्रूट्स एंड palm oil, fruits and the palm oil. These two things are going to the from arid and semi arid to the Middle East. Okay, next one is most international agency which fund development program in India intergovernmental bilateral agreement mainly provide. तो most of the जितनी भी most of the international agencies most of the international agency which फंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि क्या करती है? फंड करती है किसको? डेवलपमेंट प्रोग्राम को, विच फंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द इंटर गवर्नमेंटल बायलैटरल एग्रीमेंट। सो द फर्स्ट इज़ द टेक्निकल असिस्टेंट। वो पहली बात है कि वो क्या देंगे हमें? दे विल गिव द टेक्निकल असिस्टेंस, दे विल गिव द टेक्निकल असिस्टेंट, दे विल प्रोवाइड अस द सॉफ्ट लोन्स, दे विल प्रोवाइड द सॉफ्ट लोन, एंड थर्ड इज़ द एट द लेस इंटरेस्ट रेट, एंड थर्ड इज़ द दे विल ग्रांट नॉट रिक्वायर्ड टू द पेड बैक, और दे विल प्रोवाइड द ग्रांट्स, तो ग्रांट्स भी देते हैं। एंड फूड असिस्टेंट जो है ये अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, जितनी भी मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज हैं इसमें फूड असिस्टेंस की अभी तक भी इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी ये लोग टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, एंड दे आर गिविंग द ग्रांट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी पे बैक, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से उसको पे करें। ओके, सो ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। Now next is a redistribution of income in the country can be based both about through. So redistribution of the income, redistribution of the income of the country. This is the progressive taxation. जब भी आपके यहाँ पे progressive taxation होगा, progressive taxation system. So taxation system, if there is a progressive taxation system, that means it will progressive taxation combined with the regressive, if there is a progressive taxation combined with the regressive taxation, then there will be the redistributive income between both of them. Okay, now next is so progressive taxation क्या होता है? Progressive taxation is about combined with the regressive taxation will lead to the more spending by the government on the poor people. अगर progressive के साथ regressive taxes भी हैं, that means you are providing more money to the poor people, and it will मतलब richer जो होंगे वो उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे, और उनकी जो मनी होगी जो टैक्स की उसको आप पुअर्स के ऊपर वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे. That means it will be the way to redistribute the income in the country. The number of the industry for the which industrial licensing is required, so that is 6 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, अभी वो चेंज हो गया है थोड़ा. एक तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एल्कोहलिक ड्रिंक, सिगार, इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हजार्डस केमिकल एंड ड्रग्स एंड द फार्मास्यूटिकल. तो ये 6 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको आप लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है इन जनरल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सम ऑफ द विच फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द ब्रॉड मनी. अब यहाँ पर है ब्रॉड मनी. ओके, सो ब्रॉड मनी का मतलब क्या होता है? ब्रॉड मनी मीन्स द करेंसी विद द पब्लिक. फर्स्ट द करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है. सेकेंड होता है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक. सो डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ब्रॉड करेंसी. टाइम डिपॉजिट with the bank, time deposit with the banks, and this is also comes under the broad money. Fourth है other deposit with the RBI, other deposit with the RBI. So this 4 kinds of the things comes under the broad money. So RBI ने M3 को क्या बोला है? M3 is a broad money and M1 is a narrow money. So M1 plus time deposits क्या होता है? That is known as a broad money. तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट कर देंगे एंड इट इज़ इक्वल्स टू M3. ओके, दैट इज़ इक्वल्स टू M3. सो नैरो मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी. जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है दैट इज़ नोन एज द नैरो मनी, एंड दैट कैन एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर. इट इज़ विड्रॉल एनी टाइम फ्रॉम द बैंकिंग आवर, एंड दैट इज़ अंडर द डिमांड डिपॉजिट. तो नैरो मनी किस में आएगी? अंडर द डिमांड डिपॉजिट. बट व्हेन नैरो मनी इज एडेड द टाइम डिपॉजिट, दैट विल बिकम द ब्रॉड मनी. और नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात किसने की थी? डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSU में.
So that is the Rangarajan committee. Rangarajan committee. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस. इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात की थी ओमकार गोस्वामी. ओमकार गोस्वामी वॉज टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सिकनेस. टैक्स रिफॉर्म, दैट इज राजा जे चलैया. टैक्स रिफॉर्म एंड दैट इज द राजा जे चलैया. Raja Ji Chalaiya was talking about a tax reform and reform in the insurance sector, and this insurance sector reform by the Malhotra, R.N. Malhotra. Okay, now next one is one of the important agreement reached to the 1996 the ministerial conference of the WTO, and it was the commerce and information technology. किस पर किया था? commerce and इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड कॉमर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन द सिंगापुर इन 1996. ओके, सो ये ओल्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें ओल्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ नेशनल इनकम पर हेड इन द US डॉलर. इट इज़ द नेशनल इनकम per head of the US dollar. So that is called the human development. So human development index is comprises of the national income per head of the along with the literacy rates and life expectancy. इसमें क्या क्या include है? Health is included and education is included and standard of living. So these three things, health, education and the standard of living, these three things is included in the HDI index. Okay, this is included in the HDI index. So this is finished up. Now next question है हमारा कि आयरन ओर हमें कहाँ मिलता है. ओके, आयरन ओर दैट इज़ इन द जापान एंड लेदर गुड्स, सो लेदर गुड्स एंड दैट इज़ इन द रशिया एंड टी इज़ द इन द UK. ओके, टी UK के लिए टी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड कॉटन फैब्रिक दैट इज़ इन द USA. सो कॉटन फैब्रिक की जब भी आप बात करेंगे सो यू विल थिंक अबाउट द USA. ओके, now next one is the India inflation is measured by. तो जब इंडिया की बात आती है, वैसे ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं. तो इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड इन द WPI एज ए कंप्यूटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बट हाउएवर 2015 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट द प्लेस मैकेनिज्म थ्रू द एग्रीमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड नाउ विच इज़ CPI बेस पे कर दिया गया था. इट इज़ टू द टारगेटेड बाय द RBI दैट इन्फ्लेशन रेंज विल बी द 2+-4% की रेंज में होनी चाहिए एनुअल बेसिस, एंड दिस इज प्लेस द WPI बेस्ड इन्फ्लेशन. द CPI इन्फ्लेशन हैज़ बीन मेट द एंचर रेट ऑफ द इन्फ्लेशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी. तो CPI वाली जो है इसको तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रख दिया गया बट बेस्ड किया गया WPI पर. ठीक है, सो ये चेंजेस 2015 में आए थे, इससे पहले WPI बेसिस पर ही माना जाता था. नाउ इसको 2020 में फिर से CPI पे बेस कर दिया गया है और 2+-4% जो होगा दिस विल बी ओवर आइडियल रेट फॉर द इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज राष्ट्रीय महिला कोष. द राष्ट्रीय महिला कोष इज मीटिंग द क्रेडिट ऑफ द पुअर वुमेन. ओके, महिला समृद्धि योजना, दिस इज अबाउट द प्रमोशन ऑफ द सेविंग इन द वुमेन. समृद्धि मीन्स सेविंग. एंड इंदिरा महिला योजना, इट इज़ फॉर द एजुकेशन. इंदिरा महिला दैट इज़ फॉर एजुकेशन. और महिला समाख्या प्रोग्राम, महिला समाख्या फॉर द एम्पावरमेंट, महिला समाख्या फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. द स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस, सो अर्बन एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस, अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस. ओके, दिस अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट जो है एंड हाउसिंग सेक्टर दैट इज़ अंडर द नेहरू रोजगार योजना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द इमर्जेंस ऑफ द इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिटिक आइडियोलॉजी. अभी हमारे यहाँ पे क्या आ गया है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. Okay, this globalization is not imply the decline of the social ideology. This is not decline the social ideology, but the ideology of the socialism believe in the universalism and the globalization. So socialism is believe on the universalism and the globalization. Okay, now next one is which of the following comes under the non plan
expenditure. So first is subsidies. So yes, subsidies. Then interest payment. Yes, it is also. Then defense expenditure. Yes, it is also. And last is maintenance of the infra. Maintenance of the infra of the previous plan, that is also. So maintenance of the infra for the previous plan, that is also included in that. नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एज द फैक्टर कोस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कोस्ट, एट द फैक्टर कोस्ट, एंड दैट इज़ नोन एज द नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कोस्ट. इसको हम कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज, एंड प्लस सब्सिडीज. ओके, so this is minus indirect taxes plus subsidies and net national product into the market cost minus indirect taxes plus subsidies. Okay, next is minimum alternative tax, MAT. MAT was introduced in 1996 and 97, and MAT was introduced to curb the practice of the achieving zero tax status. तो कुछ कंपनीज होती हैं, दे आर द जीरो टैक्स स्टेटस कंपनीज, ठीक है, तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगा हुआ होता है, इसीलिए मैट को इंट्रोड्यूस किया गया था. और कैलकल कमेटी ने कहा था कि मैट को कम से कम 18.5% कर दिया गया. इट इज़ इंट्रोड्यूस टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ द सम कंपनीज अचीविंग जीरो टैक्स स्टेटस and huge dividend issuing bonus share and the efficient tax planning leading to their escaping the tax net. वो क्या चाहती हैं कि वो टैक्स इरोजन करना चाहती हैं, इवेजन करना चाहती है. सो वी डोंट वांट टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. दैट्स वाई वी अप्लाइड द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एंड इट वॉज 18.5%. नेक्स्ट इज some time back the government of India decided the white good industry. Okay, this white good industry are the item purchased for the conspicuous consumption. It is for the conspicuous consumption. It is for the conspicuous consumption. So white good is like TV, AC, fridge, cooler. Okay. Now next one is which of the following region of the world supplies the maximum our imported commodities. तो हम सबसे ज़्यादा imported commodities कहाँ से लाते हैं? यूरोप से. So Europe is a region where supply the maximum or important commodities. We import maximum from the Europe. तो ये जो है डाटा से एक्चुअली ये पुराना डाटा से अभी प्रेजेंटली ये सब कुछ चेंज हो चुका है. इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? तो UAE आई थिंक, और अभी देखना पड़ेगा. वील सी इन द बजट. एंड ये तो पेपर है दैट इज़ 19 के उस समय होता था. यूरोप से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे हम लोग. ये उस समय की बात है, 1990s के आसपास की. प्रेजेंटली द सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली चेंज. तो जब इकोनॉमिक सर्वे विल डिस्कस देन. नेक्स्ट इज कंसिडर द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट. ओके, सो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होती है, इंटरनेशनल मार्केट, आप है ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि अभी हम प्रेजेंटली किसके साथ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जो इंटरनेशनल मार्केट है, प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज़ डिसाइडेड बाय दैट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कंट्री. तो पहला डिमांड कितना है, तो वर्ल्ड बैंक तो डिसाइड नहीं करता है इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होती है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक डू नॉट डिसाइड. कितनी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कितनी है मार्केट में, एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली. तो प्राइस एंड करेंसी जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में, हमें क्या देखना है? फर्स्ट तो वी शुड सी द स्टेबिलिटी, एंड सेकेंड इज डिमांड सप्लाई के बीच में कितना गैप है, डिमांड एंड सप्लाई गैप, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सी. कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं. तो दिस विल ए कंज्यूमर इज सेड टू बी द इक्विलिब्रियम. अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद द गिवन इनकम. सो इफ़ देयर इज़ ए इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द कंज्यूमर इज़ गिवन
fulfill needs with given income level, जितना भी इनकम लेवल है उसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज द कंज्यूमर इन द इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सप्लाई साइड इकोनॉमी ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन. तो जब भी सप्लाई साइड इकोनॉमी होगी तो सप्लाई साइड इकोनॉमी इज द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्रोड्यूसर. ठीक है, तो प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सप्लाई साइड, एंड कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है दैट इज फॉर द डिमांड साइड. नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका threatened to ask the WTO to apply the sanctions against the ILO. ठीक है, and the United States of America itself has adopted the implementation of the ILO. तो WTO ने क्या अप्लाई कर रखा है, ILO कन्वेंशंस को अप्लाई कर रखा है, एंड तो बहुत राइट है, एंड ये पुराना क्वेश्चन है, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच डिस्कस. अकॉर्डिंग टू द मीडोज़, ये भी कुछ पुराना क्वेश्चन है. मीडोज़ ने 1972 में कहा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो यहाँ पे लिमिट टू ग्रोथ ऑन ओवर प्लेनेट विल बी रीच्ड. लिमिट टू ग्रोथ कब तक मिल जाएगी, तो दैट वाज 100 ईयर्स, ऐसा कुछ स्पेकुलेट किया गया था उस समय. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कब आया था, सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो ऐड किया गया था दैट इज़ इन 1997. तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी इंडेक्स दैट इज़ इन 2010. तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब ऐड किया गया था, सो दैट इज़ इन 2010. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज मेज्ड. तो डो जोन्स जो करेंसी है दैट इज़ फ्रॉम द न्यूयॉर्क. तो डो जोन्स जो करेंसी है नेम इज़ डो जोन्स एंड दैट इज़ फ्रॉम द न्यूयॉर्क. And Hang Seng is actually from Hong Kong, and the FTSE 100 that is from the London. तो ये पुरानी थी. नेक्स्ट इज करेंसी प्राइस इंडेक्स नियरली 330. वेटेज मीन ऑफ द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स हैव इंक्रीज 3.3 टाइम्स. सो इसीलिए करेंसी प्राइस इंडेक्स की अगर रेट 330 है दैट मीन्स 3.3% इसमें इंक्रीज़ हुआ है. नाउ द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशो. बैंक भी होती है ना, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, they are required to maintain certain ratio. तो क्या बोलते हैं इस रेशो को, दैट इज SLRs, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ओके, सो बैंक मेंटेन द सम SLR and that should be in the cash, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो ये क्या होगा, या तो कैश होगा या फिर गोल्ड होगा या फिर गवर्नमेंट की क्या होंगी, सिक्योरिटीज़ होंगी. सो ऑल थ्री आर मेंटेन्ड बाय द बैंक्स. अगला है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर जो चलता है जुलाई टू जून. तो कब से जे याद रखना है, इट इज़ जुलाई टू जून. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर विच इज़ करेंसी इन द टर्म. सबसे पहले है US डॉलर, देन है कनाडियन डॉलर, देन है न्यूजीलैंड का डॉलर, लास्ट में है हांगकॉन्ग का डॉलर. ठीक है, दिस इज़ द सीक्वेंस. इको मार्क क्या होता है, इको मार्क. सो इको मार्क का मतलब होता है दिट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली. द मीनिंग ऑफ द इको मार्क इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, and this is the Bureau of Industrial Standard, this taken in the 1991 environment friendly mark, that is eco mark. Okay, capital account convertibility in Indian rupee means that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of the trading financial asset. तो capital account convertibility and इस convertibility को क्या कहा जाता है, that is exchange into the फाइनेंशियल असेट्स. सो फाइनेंशियल असेट्स के अंतर्गत अगर कुछ एक्सचेंज होते हैं, सो दैट इज़ नोन एज द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. वी आर नॉट फुल्ली कन्वर्टेड द कैपिटल अकाउंट येट, बट इन फ्यूचर वी कैन डू दिस. द इकोनॉमिस्ट हु वॉज एसोसिएटेड विद द WTO ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ A.K. सेन. सो A.K. सेन इज हु इज एसोसिएटेड विद द WTO. इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द
every year he get the economic survey, Department of Economic Affair, and from 1950 से 1950 to 1951 along with the budget document, this is circulated along with the budget document. However, in 1964 it was declined from the budget and circulated in advance, मतलब पहले से ही आ जाता है. और अभी तो कुछ और भी सिनारियो चेंजेस आए हैं, सो न्यू बजट पढ़ेंगे तब. बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, balance sheet of company determine the size and the composition. It determine the size and the composition of the asset and liabilities. कितने assets हैं and कितनी liabilities हैं, that is the balance sheet. Okay, now next one is regional disparity of the India is high. Regional disparity, there is a persistent investment over a time. Some areas agroclimatic less conducive for the development, and some areas continue to face little or the no agrarian transformation, and some areas have faced continuous political instability. So in political instability is not the reason of the regional disparity, but yeah, one is that there is a persistent investment, किसी एरिया में होता है किसी में नहीं होता है, तो डिस्पैरिटी बढ़ेगी ही. सेकेंड इज़ द कंड्यूसिव डेवलपमेंट, किसी एरिया का होता है एग्रो क्लाइमेटिक का, बट अदर एरिया इज़ नॉट डूइंग सेम काइंड ऑफ द क्लाइमेटिक इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज़ ऑल्सो. एंड नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यू फेसिंग अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, थ्री थिंग्स. Regarding the levying, collecting and distribution of the income tax, so this is about the proceed income tax between itself and the state. Okay, now next is industrial development of India. So industrial development of India जब भी करते हैं, सो लैक ऑफ द एडिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द लीडरशिप इन द बिजनेस. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं होगी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स द मोर एंटरप्रेन्योरशिप. लैक ऑफ सेविंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग कम हो सकती है. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है एंड लिमिटेड परचेजिंग पावर भी हो सकता है. बट लैक ऑफ एडिकेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है. हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है, लीडरशिप भी है, बट वी आर लेकिंग इन द सेविंग, वी आर लेकिंग इन द टेक्नोलॉजी, वी आर लेकिंग इन द परचेजिंग पावर. So these are the problems where or India is not developing as per the industrial development. Tourism industry in India is quite small compared to the many other countries, and which of the following sometimes correct in this regard. So tourism industry में क्या है, we need more infrastructure. अगर हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव द टूरिज़्म, देन वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर and we need to attract the more tourism. If we'll attract the more tourism, we will get more dollars and we will spend more in international market and we will get growth rate as per our requirements. Employment assurance scheme advises the financial assistance to the rural area. So employment assistance scheme क्या होती है, one man and the one woman in the rural family living below the poverty line. सो अगर कोई भी आदमी या औरत बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, दे आर लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द रूरल एरिया. रूरल एरिया में क्या होता है, दैट इज़ इन द 1993 एडवाइजेज द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द रूरल एरिया फॉर द गारंटिंग द एम्प्लॉयमेंट. एंड संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी लाई गई थी उस समय. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the planning process of the industrial sector in India is assumed relatively less important. Planning is less important. Which one of the following is not true in this regard? So the national priority have shifted away from industrial development to the rural development. तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रूरल डेवलपमेंट की तरफ वी आर नॉट शिफ्टेड येट. We are giving new economic policy in the 1991. In that we given the globalization, liberalization and the privatization. So we shifted from the developed countries not to the rural countries. Okay. Now next one is small scale industries. Small scale industries. Okay, small scale जो industries हैं. Small scale industries. These small scale industries are most cases not as efficient as competitive. These are not competitive. The what are the reason? अब हमें क्या चाहिए, इनको हम कॉम्पिटिटिव बनाएं. फर्स्ट, प्रोवाइड द हाई एम्प्लॉयमेंट एज पर कैपिटा डेवलपमेंट बेसिस. पहले तो इनको हाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है. सेकंड, प्रमोट द रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी.
तो रीजनल डिस्पर्जन इज़ नॉट बट हैव परफॉर्म्ड बेटर इन एक्सपोर्ट। तो स्मॉल सेविंग में तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर होता नहीं है, बट प्रोवाइड जॉब्स टू लो स्किल लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कर देती हैं। एंड दे आर प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटल बेसिस पे ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती हैं। रीजनल डिस्पर्जन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। द फार्मर आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम ए नंबर ऑफ द सोर्सेज फॉर देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट्स दैट आर फॉर द फार्मर्स, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स, ये सभी लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब भी फार्मर्स को लोन चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा? पहला तो है कि प्राइमरी एग्री मार्केट, ये होंगे, आरआरबीज होंगे, कमर्शियल बैंक्स होंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी। सो दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। द प्रोड्यूस लाइफ साइकिल फ्रॉम इंसेप्शन टू द डिमाइज, ठीक है। तो अब जैसे ये एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देख रहे हैं हम, तो ये प्रोडक्ट जा रहा है यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ से ऐसे गया, फिर ये यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये वन एरिया है, वन एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 एरिया में इसकी ग्रोथ हो रही है और 4th एरिया में इसकी क्या आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। सो दिस इज़ द ग्राफ, पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमें कॉमन सेंस से करने होते हैं। Which of the following objective of the National Renewable Fund to safeguard the interests of the worker may be affected by the technological upgradation? So National Renewable Fund is made in 1991 under the new industrial policy. So this fund was for the technological upgradation, ठीक है। Now next one is WTO, this is for the multilateral trade negotiation. IDA, that is for the sanctions of the soft loan. तो soft loan कौन प्रोवाइड करता है? IDA. IMF, that is for providing the short term balance of payment की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? IMF. And IBRD is facilitating borrowings for the reconstruction and the development. Okay. Next, since 1980 the share of the tertiary sector in the GDP that is shown the increasing. तो tertiary sector कौन सा होता है? tertiary sector में आते हैं हमारे shown increasing in the 1980. तो प्राइमरी सेक्टर तो हमारा हो गया जैसे एग्रीकल्चर बेस पे होता है, टर्शरी में सर्विसेज आती हैं। तो सर्विसेज में हमारा जीडीपी ग्रोथ कब से स्टार्ट हुआ है? 1980 में ये इंक्रीज हो गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिवोल्यूशन ऑफ द करेंसी में प्रमोट द एक्सपोर्ट। जब भी आप करेंसी को क्या कर रहे हैं? डिवोल्यूएशन कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन, दैट मीन्स प्रमोट द एक्सपोर्ट। तो आप करेंसी को डिवॉल्व कर रहे हो, डिवोल्यूशन कर रहे हो, दैट मीन्स आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ द कंट्री प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू द डिवैल्यूएशन। जब भी आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस है दैट विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई वी आर नाउ गोइंग टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। सो बोथ आर एक्चुअली true and explaining to each other. Fiscal deficit is greater than the budgetary deficit. तो ये बात सही है, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोविंग्स प्लस अदर लाइबिलिटी। सो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट डेफिसिट प्लस जितनी भी बोरोविंग्स करती है गवर्नमेंट एंड प्लस अदर लाइबिलिटीज़। दिस इज़ द फिजिकल डेफिसिट, ओके। एंड द बजट डेफिसिट में क्या आता है? बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कितना हुआ, ठीक है। एंड बजट डेफिसिट में क्या आएगा? रिवेन्यू डेफिसिट आएगा प्लस कैपिटल डेफिसिट आएगा और फिजिकल डेफिसिट इज़ ग्रेटर देन द बजटरी डेफिसिट। तो अब बोल रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज़ द बोरोविंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस द अदर लाइबिलिटीज़। तो दोनों ही बोथ आर राइट बट बोथ आर नॉट एक्सप्लेनिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्यूपाई द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में सिंगापुर जो है दैट वाज एक्चुअली गुड इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दिस लॉन्च द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एंड इट वाज इन 1999। सिंगापुर वाज बेस्ट। प्रेजेंटली तो जो होगा वो देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? दैट इज़ C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सो C का मतलब क्या होगा? कंजप्शन,
एक्सपेंडिचर आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एंड दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम, दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम. Rise in the Sensex. So if there is a rise of the Sensex, that means overall rise in the price. तो सेंसेक्स अगर राइज हो रहा है मतलब प्राइस में क्या आ रहा है, राइज आ रहा है. ओवरऑल प्राइस में क्या आ रहा है, ओवरऑल प्राइस इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द सेंसेक्स इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. द न्यू जीडीपी सीरीज वॉज सीएसओ लॉन्च किया था. इट वॉज 1994 में आया था. सीएसओ ने न्यू जीडीपी सीरीज लॉन्च किया था. तो ये तो ओल्ड क्वेश्चन है. अभी प्रेजेंटली जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो 2011 और 12 के बेसिस पे की जाती है. इससे पहले ये कैलकुलेट होती थी 93-94 और प्रेजेंटली 2011-12 और इसको भी चेंज करने की बात चल रही है. ठीक है. नाउ बूम का मतलब क्या होता है, बूम का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ आर हायर लेवल एंड इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट एवरीथिंग. रिसेशन का मतलब होता है कि ग्रेजुअल फॉल ऑफ द इनकम. तो रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है फॉल ऑफ इनकम. एंड डिप्रेशन का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में आउटपुट भी कम है, तो दैट इज़ डिप्रेशन. और रिकवरी का मतलब होता है स्टीडी राइज हो रहा है. जनरल प्राइस लेवल अगर स्टीडीली राइज होता है दैट इज़ नोन एज द रिकवरी लेवल. ठीक है. और नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम अगर 20 रुपये थी 1867 और 68 में, सो फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट की थी ये 20 रुपये, दैट वाज द दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी जो थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, he calculated the per capita income and his book was poverty and British rule of the India. Next is the rate of growth of the India export has shown appreciated increase. तो ग्रोथ हुई है इंडिया की, जो ग्रोथ हुई है दैट इज़ इंक्रीज्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रीस्टोर्ड द डिवेल्यूएशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, डिवेल्यूएशन को रीस्टोर कर दिया गया. सो बोथ आर ट्रू. UN डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वाज UN डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वाज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. NCAER that is Indian Human Development Report. Indira Gandhi Indian Institute that was under the Indian Development Report and World Bank that is under the World Development Report. तो वर्ल्ड बैंक निकालती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो निकालता है उस रिपोर्ट को हम कहते हैं इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट. और UN डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, जो UN डेवलपमेंट की रिपोर्ट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. UN कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है. और द वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट निकालता है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट जो रिपोर्ट निकालता है दैट इज़ नोन एज इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट. इंस्टील इनटू द वास्ट मिलियन ऑफ द वर्कर मी एंड वुमेन वो एक्चुअली डू द जॉब सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस. सो दिस इज़ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आया था 1952 में. ठीक है. इस प्रोग्राम में क्या था, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़ वॉज प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम. इसमें क्या था कि रूरल डेवलपमेंट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड दैट वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 1952. इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स भी बनाया गया है. तो ये इसमें नहीं है. देखो जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट so there is a human development index. in that first is इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडेक्स है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है और हेल्थ से रिलेटेड भी है. लेकिन इसमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स नहीं है. देयर इज़ नो इंडेक्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन. So liberalization is to change the industrial licensing policy. It is change the licensing policy. Okay, and that was delicensing करना. We need now delicensing of the foreign investment. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का ही पार्ट था. ठीक है. अब है कंसिडर इंडियन रुपी इज़ अ फुल कन्वर्टेबिलिटी. So actually Indian rupee is full convertible in the current account. Okay, that is true. Full convert in the capital account में नहीं है.
और गोल्ड में भी नहीं है. वी आर फुल्ली कन्वर्टेबल इन द करेंट अकाउंट एंड तारापुर कमिटी recommended that we should go for the full convertibility in the capital account also. Now resurgent India, so it was the US डॉलर है resurgent में, फिर पाउंड है और एक स्टर्लिंग्स है, और फोर्थ है मार्क. डच का होता है ना मार्क, डचेस मार्क, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. नाउ द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हेल्ड इन द 1999. तो ये जो मीटिंग थी WTO की, इसमें कहा गया था कि लेबर रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा. सेकेंड वॉज द एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़. थर्ड वॉज द टेररिज्म. तो टेररिज्म को इसमें डिस्कस नहीं किया जाता है, और डेप्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें डिस्कस नहीं किए जाते हैं. तो लेबर और एनवायरनमेंट को इसमें इंक्लूड किया गया था 1990 में. अभी का कुछ चेंज हुआ हो तो देखना पड़ेगा. ठीक है. द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट ए करंट प्राइस इज़ हायर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कॉन्स्टेंट प्राइस. तो ये जो इंक्रीज़ हो रहा है इसको क्या कहते हैं, प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होना. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट होता है, मैक्रो असेसमेंट, एंड दैट इज़ GDP के जैसे नॉमिनल GDP है. ठीक है. इसको मेज़र किया जाता है. तो इसमें इंक्लूजन होता है इन्फ्लेशन का. जब भी आप नॉमिनल GDP को अगर मेज़र करेंगे तो दैट इज़ इंक्लूडेड द इन्फ्लेशन. और जब भी आप रियल GDP को अगर मेज़र करते हैं, सो रियल GDP को जब भी मेज़र करेंगे दैट विल इन बी द कांस्टेंट प्राइस, दैट विल इन बी द कांस्टेंट प्राइस. और जो नॉमिनल GDP होता है इसमें इन्फ्लेशन को भी क्या करते हैं, एडजस्ट किया जाता है. सो द करंट बेस ईयर GDP इज़ इंडिया 2011 एंड 2012 का है. और नॉमिनल GDP को क्या कहते हैं, दैट इज़ मेजर द नॉमिनल GDP इंक्लूड द इन्फ्लेशन. तो नॉमिनल GDP में क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, बट जो रियल GDP होता है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एनी काइंड ऑफ द इन्फ्लेशन. नेक्स्ट है गिल्ट एज. गिल्ट एज का मतलब क्या होता है, गिल्ट एज का मीनिंग होता है मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इट इज़ द मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो गिल्ट एज इज़ द मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड दे विल बी रिडीम ऑन द ड्यू डेट्स. इसको रिडीम कर दिया जाएगा ड्यू डेट्स में. सो दैट इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, गिल्ट एज. अब नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ मध्य प्रदेश. ये कल भी डिस्कस हो गया था कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जहाँ पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया गया था. नाउ द एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड दैट इज़ इन सोनीपत, भारत अर्थ मूवर्स दैट इज़ इन बेंगलुरु, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन दैट इज़ कलोल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी दैट इज़ इन भुवनेश्वर. सो द स्कीम लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सो यूनियन गवर्नमेंट कुछ स्कीम लॉन्च करती है. दीज स्कीम्स आर अंत्योदय अन्य योजना, अंत्योदय अन्य योजना दैट इज़ ट्रू. ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना दैट इज़ ट्रू. सर्वा प्रिया दैट इज़ नॉट इन जवाहर. ग्राम समृद्धि दैट इज़ ऑल्सो नॉट लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2000. इसने 2000 की स्कीम्स पूछी है तो हमको ईयर्स याद होनी चाहिए. पहला अंत्योदय अन्न योजना दैट वाज केम इनटू द 2000. ग्राम सड़क योजना दैट इज़ ऑल्सो केम इनटू द 2000. सर्वप्रिया योजना थी दैट वाज इन द 2001. और जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी दैट वाज इन द 1999. नेक्स्ट डे कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर रिगार्डिंग द इंडस्ट्री. तो जब इंडस्ट्री की बात आएगी तो कैपिटल चाहिएगा. जब भी कोई इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो वहाँ क्या चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए आपको, और आपको पावर कंजप्शन चाहिए. बट बिजनेस टर्नओवर अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया. बिजनेस टर्नओवर दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड. सो जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ कैपिटल, लेबर और वहाँ की पावर कंजप्शन, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दैट. The most appropriate measure of the country's economical growth is that is the per capita real income. Per capita real income, and this per capita real income is the most appropriate measure of the economical growth. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ द टोटल. फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट ऑफ द बोरोइंग. बजट डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेप्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट. और रिवेन्यू डेफिसिट एक्सेस ऑफ द टोटल रिवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट. प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जितना भी फिस्कल डेफिसिट है माइनस कर लोगे आप इंटरेस्ट पेमेंट को. ठीक है. तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर,
over the total receipt, less than the borrowing and less than the interest payment. So that will be the primary deficit of the country. So these 100 questions we discussed, and we will discuss again more questions.